Okay, friends. So we'll be starting our today's class. So Yes, sir. the last class we have started that concept of standard deviation. Did you try that? Did you see that questions? Yes, sir. Do you understand, or you find any problem? No, sir. Easy, no? Yes, sir. Okay. So I will just recapitulate that thing, standard deviation part. Then we'll enter into the new concept. So right now I am sharing with you the appropriate screen. The screen is here. Okay. You are seeing the screen now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Risk analysis in project proposal. That is what we have discussed. And we know we have understood that a risk means variations between your expectations and the actual result. If you expect a kind of return and actual return is different, we can say there is a risk in that project. Okay, that concept we are discussing, we have discussed in your last class. Okay, how Yes, to sir. measure that risk? There are two ways. One thing is that by the Standard range, deviation. one is by the range of return. Other thing is that we can calculate standard deviation. And to calculate Yes, sir. standard deviation, we have to calculate this simple formula: probability into deviation square, then sum To the of this power. probability into deviation square, in then whole root of that. Okay, probability Yes, into sir. deviation square, sum of probability into deviation square, it is called as the standard deviation square. That is also called as the variance. First we will calculate variance, then we will be calculating standard deviation. Okay, this is also another way of attaching probability to the uh, expected return. Okay, this is also another way of adjusting the risk. Here what we are doing, since we are not sure or there is an uncertainty about the returns, we are finding out what are the possibilities of return. Let us say in this question, return possibilities are 6, 12, 20, 27 and 30. So we are attaching some probability, like probability of 0.5 it is attached here, probability of 0.2, 5%. 0.5, 0.2, 0.05 is attached here, right? So accordingly, total is 100%, total is 1. Then we are multiplying the returns with the probability to find out, we have understood this is the probable return. Okay, then we find out what is the mean of that return or average of that return. The mean is how much? 19. 19. Then we are finding out the deviation. Deviation means from the mean, what is the deviation? This mean is called as the standard. Mean means average. So average is the standard. So standard 19 होना चाहिए, actually कितनी हो रहा है 6. तो deviation कितनी हो रहा है? तो -13 कम हो रहा है. Next case it is -7, right? Next case Yes, it sir. is 1 1 plus positive, 1. then plus 1, then 8, then 13. These are the deviations. Okay. And when Yes. we talk about the deviations, and we have to understand that positive deviation, negative deviations, both are risk. Okay. Yes, sir. Suppose हम ऐसे अगर deviation का total करेंगे तो plus minus cancel हो जाएगी, overall risk कम हो जाएगी, ठीक है? तो Yes. इसको जो negative effect को reduce करने के लिए what we are doing, उसको square बना देते हैं. Square करने से सब positive हो जाएगा. मतलब negative is also risk, negative is also risk. पहले square कर दिया, बाद में इसको square root निकाल लेंगे. ठीक है? So ये हो गया deviation square, right? But this deviation square, but the deviation square has some probability. It is not that 100% this will be the deviation. There is a possibility of only 0.05 for this deviation. So I am multiplying probability with that. So I am calculating PD square means probability of deviation square. Okay. Yes, sir. PD square. Then the PD square sum I am calculating, total of PD square. Yes, sir. Right? Then what is standard deviation? Standard deviation is the square root of this PD square. Square root of 37.6, we are getting 6.13. Okay. Understood? Yes, sir. Okay. Similarly, Yes, sir. another project, let us work for a B, I can calculate in the similar way. I can find out 7.6. Right?
So if we compare Okay, both the things when I compare it means I'm comparing the risk. I'm not comparing return. So here where risk is low, I have to accept. So standard deviation the risk, is it not? So in this case, Yes, sir. which project is to select? Select the project that gives low risk. So project A is to be selected because here it is 7.68, other case it is 6.13. So which is lower risk, 6.13. which is lower risk, that has to be selected. Yes, sir. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. This is the probability method. This is also the standard deviation method. Okay, रिटर्न का साथ हम probability attach करते हैं और standard deviation भी calculate करते हैं. Okay, now Yes, sir. one more concept we'll be understanding today. Standard deviation is clear for you, right? Yes, sir. अगर एग्जाम में एक सब क्वेश्चन आता है that calculate or find out whether which one is the right standard deviation, you can easily calculate. Okay, Yes, sir. sigma PD square whole root, Yes, sir. probability into deviation square whole root, and why we are calculating I had explained it, right? Yes, sir. Okay, so standard deviation is one of the good method for comparing risk and taking decisions. Okay, now one more method is Yes, there sir. where if you want to compare, one more method is there which is related to standard deviation also, that is called coefficient of variation. When we compare various projects, so we can find out what is the coefficient of variation. And for that thing, the coefficient of variation is calculated by using that formula. What is that formula? Standard deviation of standard deviation divided Expected by expected value of expected gas. value of gas. And this expected value means that standard value, जो average. क्योंकि हम वही expect कर रहे हैं average. Actual तो different हो रहा है. Yes, sir. ठीक है? So standard deviation divided by expected value of the gas. The expected value means the mean or the average. Okay. For example, in the previous questions, what we had done, you see, इस question में कैसे होगा? Standard deviation is 7.68 divided by 27. 27. Right? उसके previous question में क्या होगा? 6.13 divided by 19. Yes. That means this is the risk, but how much is the risk per unit of average return हम calculate कर रहे हैं. ठीक है? So एक calculate करने से, so 6.13 divided by 19 or 7.68 divided by 26, we'll be getting these two figures. This is called as the coefficient of variation. Understood? This is again one more method which is related to standard deviation. Standard deviation calculation होगा तभी जाके इसको कर पाए. Okay? Yes, sir. Understood? Okay. Now let us move further. Yes, sir. Okay. There are various ways of analyzing the risk in a kind of project. So in a project or in an investment decision or in a capital budgeting decision, we normally find three kinds of risk. One, we call it as the standalone risk. That means this is a risk which is specific to the project. उसी project का साथ risk है. That is called as the standalone risk. Okay. Then corporate risk or within firm risk. मतलब A project का risk, बाकी भी जितनी project है, उसको सारी मिलाकर जो risk है. That is the overall risk of the firm along with other investment proposal. उसको कहते हैं हम corporate risk or within firm risk. मतलब firm का risk. ठीक है. So standalone risk is little smaller. Corporate risk is little broader. Then market or systematic risk is further broader. That is the risk of the entire market. You can say risk of the entire economy. ठीक है. Suppose अभी देखिए अब कोरोना का रिस्क आ गया. कितनी सारी बिजनेस बंद हो रहे हैं. Okay. So it is not a corporate risk. It is not specific to a company. It is the market risk or systematic risk. पूरा सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है. Understood? Okay. Suppose एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रिस्क है, आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करोगे, इसके लिए जो रिस्क है, दैट इज योर स्टैंड अलोन रिस्क. ओके, बट आपका कंपनी का कोई रिस्क है, ओनली आपका कंपनी का, आपका कंपनी को लोन नहीं मिल रहा है, आपका कंपनी के जहां लोन मिल रहा है इंटरेस्ट रेट हाई है, ये जो रिस्क है दैट इज योर कॉर्पोरेट रिस्क. बाकी कंपनी का तो ठीक है, बट आपका कंपनी का रिस्क है. ठीक है. And market risk and systematic risk means risk which affects the entire economy. Understood? Yes, These sir. are the three kinds of risk you have understood when you deal with the project. And there are various methods of the risk analysis methods
which are used like this judgmental evaluation. That means we'll judge, we'll use our normal brain or thumb rule kind of thing. There also we, on the basis of judgment, we will decide where risk is less, which risk is more. Then payback period method. Payback period method हम लोग को क्या बोलता है कि जो प्रोजेक्ट जल्दी रिकवर करता है कैश उसको सिलेक्ट करो. वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट. ठीक है, Yes, sir. जो जितनी जल्दी कैश फ्लो देता है उसको पहले सिलेक्ट करो. इसका मतलब जितनी जल्दी होगा रिस्क उतनी कम है. Yes, sir. ठीक है, ओके. तो और एक मेथड है जो रिस्क प्रोफाइल मेथड. मतलब वहां हम क्या करते हैं, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी के साथ अटैच करते हैं. प्रोजेक्ट के रिस्क निकालते हैं, इतनी बोलते हैं कैश फ्लो, बट इसका प्रोबेबल कैश फ्लो वो निकालते हैं. और रिस्क प्रोफाइल मेथड आपका स्टडी मटेरियल में स्पेसिफिकली नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ. बट बाकी दो मेथड है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, ये दोनों डिस्कस करेंगे. व्हाट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट, ये भी देखते हैं. थ्योरेटिकल, दिस इज अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट. यहाँ क्या करते हैं, we adjust the discount factors with risk. ठीक है, so adjusting the discount rate to reflect the project risk. अगर कोई प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क है तो वो ज्यादा रेट में डिस्काउंट होगा. कोई प्रोजेक्ट में कम रिस्क है वह कम रेट में डिस्काउंटेड होगा. ठीक है, Yes, sir. तो कैसे हम निकालेंगे कौन सा रेट. सो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. Premium. इस रिस्क प्रीमियम में इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. जो रिस्की प्रोजेक्ट है उसका रिस्क प्रीमियम ज्यादा है, इसीलिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अलग अलग होगा. ऐसा नहीं कि मेरा कंपनी के 3 प्रोजेक्ट है, सब all the projects I will not discount at one rate. If I am discounting all the projects at one rate, that means I am not adjusting my discount factors with risk. But if I am adjusting, if there is a risky project, I have to discount at a higher rate. If it is a low risk project, I have to discount it at a lower rate. So this concept Yes, sir. is you adjust your discount rate keeping in view the risk involved in that project. Okay. This is called Yes, sir. risk adjusted discount rate. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's move to the next method. Yes, sir. This is also a popular method, certainty equivalent factor or risk adjustment factor. Okay, इसमें क्या करते हैं हम? पहले अभी इससे पहले क्या करते थे हम, ये जो मेथड में डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करते थे, नहीं? Yes, sir. Right. Yes, sir. But here what we are going to adjust, we'll adjust the cash flows. कैसे करेंगे? सपोज आप बोल रहे हो ईयर 1 में कैश फ्लो होगा 50 रुपीज. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आर यू श्योर कैश फ्लो 50 रुपीज होगा? मतलब नहीं, 100% श्योर नहीं, 90% श्योर. Then I will say okay, अगर 90% श्योर हो, then you have to say that certainty equivalent factor is 0.9. Yes, sir. राइट? तो आप Yes, 50 sir. मत बोलो, आप बोला 50 into 0.9, वो होगा 45 आ रहा है. ओके, समझ रहे हो? तो जो 0.9 Yes, sir. हम उसको बोलेंगे certainty equivalent factor. मतलब uncertain cash flow is 50, but certain cash flow is 45. Yes, sir. ठीक है, 45. अब अनसर्टन कैश फ्लो को सर्टन कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट. ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई हो गया, अब सारी हमारा कैश फ्लो वो हो गया सर्टन कैश फ्लो. Yes, sir. नहीं, अगर सारी कैश फ्लो सर्टन हो गया, फिर इसको कैसे डिस्काउंट करेंगे? उसको डिस्काउंट करेंगे रिस्क फ्री रेट पे, क्योंकि और तो रिस्क नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. उसका जो मिनिमम रेट मतलब रिस्क फ्री रेट पे डिस्काउंट करें. पहला जो मेथड था उसमें क्या करते थे, कैश फ्लो लेते थे, उसको रिस्क रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम इसके एडजस्ट करके डिस्काउंट करते हैं. बट यहाँ बोलता है यहाँ कैश फ्लो को, अनसर्टेन कैश फ्लो को कन्वर्टेड इनटू सर्टेन कैश फ्लो, देन डिस्काउंट इट एज अ रिस्क रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, ओके, ठीक है. दिस इज सर ये रिस्क फ्री रेट कहाँ से लेंगे? okay. What is risk free rate? Normally risk free rate actually it's a theoretical concept. ऐसा तो दुनिया में कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं है, is it? ओके, Yes, हम sir. जब बात करते हैं रिस्क फ्री रेट, हम रिलेटिवली जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उसी का रेट लेते हैं.
So normally concept is that आप आरबीआई वेबसाइट को जाइए, ठीक है, आज ही जाइए, Yes, आज sir. देखिएगा आरबीआई वेबसाइट पे, उसमें बहुत सारे पॉलिसी रेट मिलेगा आपको, ढूंढिए कहाँ है। उसमें देखिए एक जगह मार्केट रेट है, उसके अंदर है ट्रेजरी बिल रेट, ठीक है। ट्रेजरी बिल Yes, रेट sir. में दिस इज द रेट ऑफ द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का रेट है उसको माना जाता है रिस्क रेट, ठीक है। वो जो रेट है Yes, sir. उसको हम मानेंगे एज रिस्क रेट, ठीक है। अब जो पूछ रहे हो कहाँ से लाएंगे, वो आरबीआई से आप ला सकते हैं। आरबीआई के जो ट्रेजरी रेट आज आप चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। अगर ट्रेजरी रेट में क्या मिलेगी आपको, 3 टाइप का रेट मिलेगा, क्योंकि अभी 3 टाइप का ट्रेजरी बिल मार्केट में अवेलेबल है, और तीनों का आप एवरेज ले लेंगे तो आपको रिस्क रेट So ये हर टाइम कांस्टेंट रहता है या वेरीज करता है? वेरीज करता है एवरीडे बेसिस पे, हर दिन वेरी करता है। आज का देखेंगे, कल का भी देखेंगे, हर दिन देखेंगे, ठीक है। देख पाएंगे आप? Yes, sir. हाँ, आज जो चेक करके लाइए, कल मेरे को बताइएगा रिस्क रेट कहाँ से मिलेगा, Yes, sir. ठीक है। अब ये समझ में आया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर और रिस्क एडजस्टमेंट फैक्टर। आगे, Yes, Yes, sir. okay. Then there is one more approach of taking decision which is called as the decision tree approach. Okay. इसमें क्या करते हैं, Yes, हम sir. एक ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। क्या क्या एक्टिविटी करेंगे उसका एक ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं ऑल से एक्टिविटी, और हर एक्टिविटी के साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच करते हैं, राइट। इसके sir. करने का कितनी प्रोबेबिलिटी है। सपोज एक स्टील प्लांट लगाएंगे, पहले सोचेंगे लोन लाएंगे और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। सपोज लोन का प्रोबेबिलिटी है 0.5, इक्विटी का है 0.5, ठीक है। फिर लोन आएगा तो इतनी 10% इंटरेस्ट होगा, 12% इंटरेस्ट होगा, ऐसा एक ग्राफ करके जाएंगे, राइट। सो ट्री में जैसे ब्रांचेस होता है, सारी स्टेप को एक ब्रांच करके हम एक्सप्लेन करेंगे, और हर ब्रांच के साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच करेंगे। फाइनली देखेंगे प्रोबेबल कैश फ्लो कैसे होता है, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं? ये देखिए एग्जांपल, ठीक है। देखो एक कैसे, ये जैसे ट्री का एक ब्रांच है ना, जैसे 2 Yes, ब्रांच है, sir. उसके और भी ब्रांच हो सकते हैं, और भी ब्रांच हो सकते हैं। सपोज वी आर टेकिंग अ डिसीजन वेदर टू एक्सपांड और डू नथिंग, एक्सपांड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, वो डिसीजन हम ले रहे हैं। इस तरफ अच्छा होगा तो एक्सपांड करेंगे, इस तरफ अच्छा हो, जो ज्यादा होगा कैश फ्लो से एक्सपांड नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सपांड हम करेंगे इसमें 2 चीज हो सकता है, Yes, sir. इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो सकता है, इकोनॉमिक कंट्रैक्शन हो सकता है। मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ग्रोथ नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन का चांसेस है 50%, वो प्रोबेबिलिटी। इकोनॉमिक कंट्रैक्शन का चांसेस है 50%, ठीक है। 50%. अगर इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ मेरे को प्रॉफिट होगा इतनी, अगर इकोनॉमिक कंट्रैक्शन हुआ लॉस होगा इतनी, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं, डू नथिंग, इकोनॉमिक एक्सपेंशन फिर भी हुआ तो प्रॉफिट होगा इतनी, तो इकोनॉमिक कंट्रैक्शन हुआ तो प्रॉफिट होगा इतनी। तो इसमें कौन सा हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रॉफिट यही हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो हम एक्सपांड करेंगे, यही है डिसीजन, मतलब पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सर लेकिन ये तो 50-50% प्रोबेबिलिटी रहता है ना, हाँ, तो 50-50% वैल्यू के कैसे, तो वैल्यू कैसे चेंज हो सकता है? मतलब मतलब 50% अगर 50% मतलब ये 50% है 5 लाख, एक्चुअली ये पूरा होगा कितनी, 50% है 10,000, कितनी है, जितनी भी है उसका डबल होगा, ठीक है। 10,000, 50 लाख है, 50 लाख है, एक्चुअली ये है 1 लाख रुपीस। 1 लाख 50 रुपीज इंटू 0.5, सॉरी ये 100 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ इंटू 0.5, ये इसीलिए दिखा रहा है आपको 5 लाख, Yes, sir. ठीक है। समझ में आ गया? ये भी एक्चुअली Yes, sir. लॉस होगा 6 लाख रुपीस, लेकिन हम सिंस प्रोबेबिलिटी है 0.5, वी आर टेकिंग इट हाउ मच, 3 जी, लाख, ठीक है। वो 3 लाख. प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करके ये सारी फैक्टर देखेंगे, इससे जो हो रहा है हाईएस्ट मेरा हो रहा है, इसलिए मैं आई विल गो फॉर एक्सपांड, 3 लाख. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यहाँ एक्चुअली Yes, हम sir. ब्रांच में अगर ऐसे लिख देंगे, यहाँ ये जो ब्रांच आप दिख रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ एक्चुअली लिखना चाहिए
1 crore 1 crore with 0.5. So 1 crore into 0.5 करने से आएगा 5 लाख. यह आएगा let us say 60 lakh. 60 लाख into 0.5 वो होगा 3 लाख. ठीक है. यह आएगा 4 30 लाख into 0.5. यह आएगा 2 लाख into 0.5 करने से. ठीक है. इसको कहते हैं डिसीजन ट्री. दिस इज हाउ आल्सो वी कैन टेक डिसीजन. Understood? Yes, sir. Okay. Then one more model is there that is called as LP or linear programming model. आप पढ़े हो क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स? QT में पढ़े हो LP? Yes sir. Yes, But sir. भूल गए हैं. भूल गए हैं. तो वो जो मैथमेटिकल मॉडल होता है आप देखते हो जैसे ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट ये सब प्रॉब्लम आप किए हो कभी कि LP का दूसरा मॉडल जो प्राइमल मॉडल डुअल मॉडल. So this concept here is that we'll apply a mathematical model to take capital budgeting decision. ठीक है. Use of mathematical model to use to take capital budgeting decision is called as LP programming models. By using that model, we will find out what is the optimal solution, what is the best decision. We can find it out by using that model. Okay, what is the objective is defined. This is the objective, and what are the limitations or restrictions are described. What are the conditions they are also defined. In that model, we decide what is the best solution, keeping in mind what is the objective, what is the limitation, and what are the conditions. Okay. So this is called Yes, as LP, a linear programming model. Yeah. Okay. Simulation is again another method. Here what happens, we feed artificial data to a computer program. Computer program और artificially आपका business करा देता है. बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक होता है, मतलब आर्टिफिशियली आपको अज्यूम करोगे मटेरियल आया, ओके, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सेल हुआ, ऑल दिस थिंग, एंड फाइनली कितनी प्रॉफिट हुआ. तो बार बार मॉडल को रन करके हम देखते हैं कि कितनी प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है. ये कंप्यूटर में होगा. ये भी कंप्यूटर में. ठीक है. Okay. सिमुलेशन मीन्स एक आर्टिफिशियल बिजनेस मॉडल वो सारी डिसाइड करके दैट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन. सेंसिटिविटी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं, प्रॉब्लम लास्ट नहीं है. मेथड का नहीं, प्रॉब्लम लीनियर नहीं है. प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्राम के प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका दूसरा पेपर है ना कुछ उसमें आ सकता है. अगर आपका सिलेबस में है मैथमेटिक्स या एक पेपर है तभी जाके आ सकता है क्वांटिटेटिव टेक्निक. अदरवाइज इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ठीक है. क्योंकि इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम. अगर आप एलपी किए होंगे तो आपको पूरा 2-3 पेज कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका. ठीक है. और आपका जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ नहीं सकते. ठीक है. Yes, sir. Okay. Simulation. Next is we are learning about sensitivity analysis, or it is also called as what if analysis. मतलब A होने से क्या हो. Here what we do, हम ऐसे assume करते हैं, सपोज ये सारी कैश फ्लो है. अगर कैश फ्लो 10% बढ़ जाएगा, एनपीवी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. अगर कैश फ्लो 10% घट जाएगा, एनपीवी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. मतलब व्हाट इफ. और ऐसे कैश फ्लो 5% बढ़ जाएगा, आईआरआर का क्या होगा. कैश फ्लो 5% घट जाएगा, आईआरआर का क्या होगा. उसके बाद हम डिसाइड करते थे कि एनपीवी ज्यादा सेंसिटिव है क्या. अगर थोड़ा सा कैश फ्लो चेंज होने से एनपीवी पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब एनपीवी इज क्वाइट सेंसिटिव. सो वो कैलकुलेट करते हैं. ओके. सिमिलरली हर फैक्टर का एक एक करके हम देखते हैं कि सेल्स बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है एनपीवी के ऊपर. रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा 10% बढ़ने से 10% घटने से क्या फर्क पड़ता है. So accordingly we find out what is the most sensitive item, because through that thing we will be knowing project is most sensitive to this. ठीक है. अगर हमें पता चला कि प्रोजेक्ट इज वेरी सेंसिटिव टू रॉ मटेरियल प्राइस, तो हम उसको पूरा कंट्रोल में रखेंगे कि रॉ मटेरियल थोड़ा प्राइस इधर उधर हो गया तो प्रोजेक्ट फेल मारेगा. ठीक है. So that is the concept we call it as the sensitivity analysis, right?
और कैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं? तो वी फाइंड आउट वेरियस वेरिएबल्स किसके ऊपर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। ओके, जैसे सेल्स, रॉ मटेरियल प्राइस, ऐसे सारी फैक्टर को हम डिसाइड करते हैं। ओके, ठीक है। Yes, sir. देन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कई तरह का अजम्पशन लेते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छा हुआ तो क्या होगा, अच्छा हुआ मतलब सर रॉ मटेरियल प्राइस कम हो गया तो अच्छा हुआ, और सेल्स प्राइस बढ़ गया वो भी अच्छा हुआ। दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन। ओके, एक ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशन से एक कैलकुलेशन करते हैं क्या प्रोजेक्ट का क्या एनपीवी आया रन होता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वी डू ए पेसिमिस्टिक अजम्पशन, चलो सब कुछ बुरा हुआ, रॉ मटेरियल प्राइस घट गया, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया, सेल्स प्राइस घट गया, सेल्स क्वांटिटी भी घट गया, ये सारी पेसिमिस्टिक अजम्पशन। ठीक है, सो एक हम करेंगे ऑप्टिमिस्टिक असम्पशन, नेक्स्ट करेंगे पेसिमिस्टिक असम्पशन। Then what we'll do, we'll decide what is the expected or most likely assumption. Most likely assumption क्या है, उसको हम मतलब एवरेज देखेंगे। नॉर्मली क्या होगा, एक ऑप्टिमिस्टिक क्या, एक पेसिमिस्टिक क्या, एक जो नॉर्मली होता है वो भी करेंगे, राइट। देन विल कैलकुलेट, सो एक ऑप्टिमिस्टिक एनपीवी मिलेगा, एक पेसिमिस्टिक एनपीवी मिलेगा, एक नॉर्मल एनपीवी मिलेगा। नहीं, अभी क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर। सो पेसिमिस्टिक एनपीवी प्लस ऑप्टिमिस्टिक एनपीवी प्लस 4 इंटू एक्सपेक्टेड एनपीवी, मतलब एक्सपेक्टेड एनपीवी उसको 4 टाइम्स ज्यादा वेट देते हैं। सो ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमिस्टिक प्लस 4 एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय 6, ऐसे उसको एवरेज आउट करेंगे। सर समझ में आ रहा इसको है? 4 4 टाइम क्यों मतलब लिया गया? जो एक्सपेक्टेड है उसको ज्यादा वेट दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड होने का ज्यादा चांसेस है, तो इसको क्या, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 4, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, और टोटल को डिवाइड कर रहे हैं 6 में। 6 ओके, ये 4 ये 1 1 टोटल 6 हुआ ना, 6 yes sir. तो 6 में डिवाइड करने से हम लोग को मोस्ट लाइकली एनपीवी आ जाएगा, द परफेक्ट एनपीवी। समझ में आ रहा है क्यों 6 में डिवाइड कर रहे हैं? Yes, sir. Yes sir. क्योंकि हम 6 एनपीवी ले रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 बार ले रहे हैं, पेसिमिस्टिक को 1 बार ले रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक को 1 बार ले रहे हैं, टोटल तो 6 बार लिया ना। Yes, sir. Yes sir. 6 में Sir, डिवाइड कर देते हैं, एक एनपीवी मिलेगा। सर जो एक्सपेक्टेड है उसको हर टाइम हम 4 टाइम ही लेंगे या 2 टाइम भी तो ले नहीं सकते हैं? 4 टाइम लेंगे, नॉर्मल रूल इज 4 टाइम लेंगे, उसको 4 टाइम्स वेटेज देंगे। ठीक है, अगर इफ योर एक्सपीरियंस सेज ओके, नॉर्मली दिस इज द रूल, योर एक्सपीरियंस सेज एक्सपेक्टेड को मैं 2 टाइम्स लूंगा, अब लीजिए 2 टाइम्स अगर लेंगे डिवाइडेड बाय कितनी करेंगे, 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, बट दैट इज नॉट ए नॉर्मल प्रैक्टिस। आप कर सकते हो एज ए फाइनेंस मैनेजर, यू कैन डू इट, एक्सेप्शनल यू कैन टेक दैट डिसीजन। ऐसा फाइनेंस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करना पड़ेगा, बट दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस। ठीक है, आपको अगर लगता है नहीं मोस्ट लाइकली को 2 वेटेज देना चाहिए, 4 बहुत ज्यादा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिव एनालिसिस। ओके, अंडरस्टूड? Yes sir. ओके, सेंसिटिव एनालिसिस से आप देखिए कैसे होता है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली इसे करते हैं, उसका साथ भी प्रोबेबिलिटी अटैच करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो फाइनल रिजल्ट क्या है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या है उसको भी मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी डिसीजन ट्री में डाल के आप डिसीजन ले सकते। Yes sir. ठीक है, दिस इज आल्सो वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग कैपिटल बजटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, Yes sir. wait a minute, wait a minute. Oh, this file is getting linked. Just a minute, yeah. Yes, sir.
Just a minute. PowerPoint is not starting. I'm trying it. Are you seeing the screen now? Yes, sir. Something is wrong. The file is not starting. Okay, both of you, I'm closing this meeting. I'll be sending you ID once again. Yes, sir. Okay, so we'll finish Yes, this particular portion. Will be finished again. I'm closing this meeting right now. Again, we'll catch up shortly. Yes. Yeah, please wait. Yes, sir.